Hey Jordan, what are you up to this weekend? Not much, just planning to chill. Wow, what's up? Want to catch a movie? There are a few good ones out right now. That sounds perfect. What do you have in your mind? I heard Edge of Time is amazing. It's a science thriller right up our alley. Oh, yeah, I saw the trailer. Looks intense. Where is it playing? Regal Downtown is a 6:30 and 9:15 show on Saturday. 6:30 works better. Give us time to grab dinner after maybe. क्या हुआ नहीं समझ में आया It's okay. Hello everyone. Today in this video we'll cover all the problems that you are facing speaking in English and giving all the solution that can help you to speak in English. So watch this video till end and don't skip the video because in the end of this video you will get some tips that will help you for sure that you can speak English and you will say after some time that okay, I am learning English, I can speak English, and yeah, I can do well in English and I can become a fluent speaker. So watch the video till end. So today in this video we'll cover that what is the reason behind it? Why are you unable to speak English? Why? It's not new for all of us. To be here, to be in India, to be anywhere in this world and listening English around us. Seeing people who are talking in English. But when it comes to us, our mind goes blank while speaking English. It's not new. When we were in our primary classes, so our teacher handed over us a three-line notebook in which we used to write A, B, C, D. That means that was a part of English, right? But the time we grow older, you know, what problem we are facing that you are unable to speak English? Have you ever figured it out? It's okay. I have figured out all the three categories in which you can put yourself and can analyze your level. Then on which level? The first category is the person who cannot understand English, let alone speak. वो लोग जिन्हें इंग्लिश बोलने के दूर समझ में भी नहीं आती है. मतलब अगर कोई दो इंसान या कोई एक ग्रुप इंग्लिश में बात कर रहा है तो उन्हें समझ में भी नहीं आती है इंग्लिश. होता है कि कई बार हमें इंग्लिश समझ नहीं आ रही है, बोल नहीं पाते हैं, और अगर कोई हमारे सामने बात कर रहा है तो हमें इंसल्टेड फील होता है. बिकॉज यार हम सोचते हैं यार वो इंसान कितना हाई फाई है, इंग्लिश बोल रहा है या बोल रही है, पर हमें तो समझ में भी नहीं आ रही है. सो वी नेवर टेक इनिशिएटिव टू थिंक और टू रीच एट दैट लेवल. you know the second category I want to talk about is the people who can understand English but can't speak in English. होता है वो लोग जो इंग्लिश समझ तो पाते हैं पर अगर जब बात बोलने की आती है देन दे जस्ट गो ब्लैंक. उन्हें समझ नहीं आता उनके थॉट्स को डायरेक्शन कैसे मिलनी चाहिए मिले. उन्हें समझ नहीं आता क्या बोलें, क्या कॉन्वर्सेशंस कैसे इनिशिएट करें, कैसे एंड करें, कैसे उसको वे फॉरवर्ड करें. दे डोंट नो हाउ टू टॉक इन इंग्लिश. एंड इवन जब भी बात स्पीच की होती है, डिबेट की होती है, तो वो रट्टा है तो मतलब क्रैम तो कर लेते हैं किसी भी चीज़ को और बोल लेते हैं. पर जब बात उनको सोच के, उनके थॉट्स को सोच के बोलने की होती है तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता है कि उन्हें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए. द थर्ड पीपल और कैटेगरी दैट आई वांट टू टॉक अबाउट हु कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश वेरी वेल, कैन स्पीक इन इंग्लिश बट दे आर नॉट सो फ्लुएंट. सो गाइज, फ्लुएंसी के लिए एज आई ऑलवेज से दैट प्रैक्टिस इज मस्ट. यू नो English is just a language. The more you will practice English or any language, any art, any activity in this world, you will be perfect in that, right? So for that, what you need to do, you need to be consistent in this. What I mean by consistency here, I'll tell you. Watch this video till end. You will get your tips today. You will get all the reasons that why are you unable to speak English, and by doing what things that you can be able to speak English. Okay, so watch this video till end. So let's start. So let's talk about some problems that you all are facing in English. The first thing that you all are facing, that I feel, that the fear of being judged, right? सबके साथ होता है. It's fine. सबके साथ होता है, जब भी हम कोई भी नई चीज़ सीखते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज़ होती है कि यार अगर मैंने वो चीज़ किसी के सामने किसी ने एड्रेस कर ली वो चीज़, या मैं किसी के सामने गलती से आ गई तो वो कैसे, सामने वाला कैसे रिस्पॉन्ड करेगा उस चीज़ को लेके, क्या वो हमारा मजाक उड़ाएगा, विच इज़ वेरी ऑब्वियस, राइट? या वो हमें जज कर लेगा, हमारे बारे में पता नहीं क्या ही सोच लेगा. सो माई वन पॉइंट दैट आई वांट टू टेल यू ऑल दैट let them think, let them talk, let them do whatever they want to do.
but you please stick to that thing. You please stick to your karma. You always remember, you need to remember one thing, that you need to stick that on that thing that you want to do. You know, there's one exam that we must follow in our lives, that we need to be the water. We do not need to be the soda can. It happens then when we shake the bottle of soda can, the fizz will come out, right? But when we shake the water bottle, what happens? Nothing. The water will come out, and with the normal flow, right? So you need to be the water. Let them people bark, let them people talk, let them people make fun of you. The one day will come when they will be regretting in the corner, and you will be the one who will standing in the middle of them. Middle of them means middle of the center, and will be laughing at them, and you will realize that you were correct. That you know it's your decision to be focused on yourself and let them say whatever they wanted to say. That was best, right? Okay, the second problem that I want to talk about, the practice. People thinks that there are a lot of, I will not address the name of those centers, but they are having a policy that they say it is a 3 month course. Once you will done with this, you will be fluent speaker, right? I am not sure. I don't think that it is true that for anything that as I mentioned that you need to become, if you want to become perfect, you need to practice it very much. So what you need to do for practice, extract 1 hour in your whole day. In 24 hours, I think you can give 1 hour for your practice, right? So first, we will discuss about problems, and third, then in the end, we will talk about the solutions of these problems. Okay. The third thing that I want to talk about is the people think that they need the high-fi vocabulary to speak English. Yeah, I do agree that you need a vocabulary to speak English, but you don't need high-fi vocabulary in the beginning. When you're starting, you just need to analyze things around you. Suppose you call save an apple, right? Save in Hindi, right? You say, मम्मी मुझे सेब दे दो काट के. तो आज से आपको सेब को सेब नहीं बोलना है. आज से आपको सेब को एप्पल बोलना है. मम्मी प्लीज कर दे एप्पल फॉर मी. इंस्टेड ऑफ सेइंग, हालांकि चलो सामने वालों को समझ नहीं आ रहा है, बट पहले आपको इंग्लिश में बोलना है. फिर आप चाहे उसको कॉन्वर्सेट करना चाहते हो हिंदी में, यू कैन, राइट? बिकॉज हो सकता है कभी सामने वाले को नहीं आती है इंग्लिश, नहीं समझ में आई उसको, तो आप उसको ट्रांसलेट कर दो. पर एटलीस्ट आप खुद के लिए सी, उनको समझ में नहीं आ रही, वो उनका कॉल है, पर आप खुद बोलना शुरू करो पहले. Try to analyze things around you and just try as much as you can. Just try कि आप आपके आसपास जितना भी सामान पड़ा है, आप उसको इंग्लिश में, मतलब उन चीज़ों को इंग्लिश में जानते हो, बोलते हो. सपोज एक बॉक्स पड़ा है, ठीक है, आप उस बॉक्स को बॉक्स ना बोल के कार्टन बोल सकते हैं, राइट? तकिया पड़ा है, तो आप उस तकिए को तकिया ना बोल के पिलो बोल सकते हो. इतना तो आप कर ही सकते हो, राइट? These things you will learn that in long term it will become your vocabulary. Obviously, as I mentioned, that you need a high-fi vocabulary, not high-fi vocabulary, a bundle of vocabulary that you will learn time by time. Like as you will be like after 15 days, 20 days, 25 days, 30 days, when you will know, okay, I'm having a bunch of vocabulary that I can use in my conversations now. Then you will learn more and more vocabulary, and it will be easy for you to learn it. So the next thing that I want to talk about is people thinks that if there is no partner, so we can't speak in English. I will not say that you can't speak in English. We are in the 21st century, and we are having that much of tools that we can't use in a single day today, right? We are having a lot of tools, a lot of browsers nowadays. So one of the thing that you can use nowadays, that is ChatGPT, Grok, Gemini, anything. You can give the command to the chat GPT, and you can say that chat GPT, give me an example of conversations in which two friends are visiting in a park to have some fun. Chat GPT will design a conversations for you, and you can read it and you can practice it in front of the mirror. Here in front of the mirror, you are playing two roles. Suppose Seema and Reena. You can become Seema once, then Reena in the next turn. Then Seema, then Reena.
That's how you can practice. Because in the room, in front of the mirror, there is no one to judge you. And people also having a fear of, you know, getting demotivated. तो वहाँ पर भी आपको डिमोटिवेट करने के लिए कोई नहीं है. आप गलत करोगे, किसी आई मीन मिरर के सामने खड़े होकर आप गलत करोगे, 10 बार गलतियाँ करोगे, 100 बार गलतियाँ करोगे. पर अगर आप वही चीज़ यू नो 100 बार करने के बाद अगर परफेक्शन आती है तो देन व्हाई नॉट टू प्रैक्टिस. वी नीड टू प्रैक्टिस इट, राइट. द थर्ड थिंग, एज आई mentioned it, दैट वो लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं. तो बच्चे डीमोटिवेट होने का कोई आई डोंट थिंक सेंस बनता है, राइट. आई थिंक यू ऑल आर नो दिस फैक्ट, एज आई मेंशनड इट ऑलरेडी, दैट किसी भी चीज़ को सीखने जाओगे तो लोग डीमोटिवेट करने के लिए ऑलवेज प्रेजेंट रहेंगे. आप हमेशा अपनी चीज़ें करो, बिकॉज आप अपनी चीज़ों पे फोकस करोगे तो आप हमेशा खुद पे फोकस करके आगे बढ़ोगे, राइट. The next thing that I want to figure out is some of the people think that if we are practice it for once in 6 months, we will be a fluent speaker. It's not gonna happen. It's not gonna happen. Okay, not in English, even in anything in this life. Okay, आप ये सोचो कि काफ़ी बच्चे होते हैं, बैक बेंचेस होते हैं, सोचते हैं कि फर्स्ट टाइम पढ़ के हो जाएगा. फर्स्ट टाइम पढ़ के मतलब they think that if they will practice once in 6 months, they will be a fluent speaker. It's not gonna happen, guys. You need to practice it more and more. Sometimes what you need to think that कभी कभी आप सोचते होंगे कि वी आर बैक बेंचर भी तो होते हैं, लास्ट के 1 महीने पढ़ के टॉप कर जाते हैं. वो चीज़ एक अलग चीज़ होती है, राइट. और यहाँ पे आपको एज ए मेंशन कि प्रैक्टिस की ज़रूरत है. प्रैक्टिस की ज़रूरत बोले तो अभी आप इस चीज़ को खुद एनालाइज करेंगे. सपोज एक लेवल के बाद, एक टाइम के बाद आपको इंग्लिश बोलनी आ गई है, बट द टाइम यू विल बी हैविंग गैप इन दिस, लाइक आपने कुछ 6 महीने तक इंग्लिश बोली, पर उसके बाद आप किसी एक ऐसे एरिया में शिफ्ट हो गए जहाँ पे कोई भी इंसान इंग्लिश नहीं बोलता है. आपका इंग्लिश का इंग्लिश तक दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है. मीन्स अपना इंग्लिश बोल रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, पहचान रहे हो, कुछ भी इंग्लिश का आपका उसका कोई वास्ता ही नहीं है. थोड़े टाइम बाद जब आप किसी और एरिया में शिफ्ट होंगे या इंग्लिश आपको सुनने में आएगी, then you will think that, oh shit, this word is new, I didn't know this word. Because at that moment what will happen, because आपकी प्रैक्टिस नहीं उस टाइम में, सुन नहीं रहे हो, देख नहीं रहे हो, बोल नहीं रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, क्या होगा, सब आपके लिए नया नया हो जाएगा. तो आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा. That's why I'm saying the more you will practice, the more you will become perfect in this. Okay, so now let's talk about some solutions for which you're waiting for. So the first thing that I want to say, that use more and more softwares. मेरा मतलब है कि पूरा पूरा दिन सॉफ्टवेयर पे जाके चिपक जाओ और स्पेस ही मत दो खुद को, रूम से बाहर ही मत निकलो, बस ये करते रहो, कॉन्वर्सेशन ही करते रहो. नहीं, मतलब आप दिन का 1 घंटा निकालो. 1 घंटे में मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताती हूँ, विच इज़ RLP बोले तो 24 घंटे में से आपने एक दिन का 1 घंटा निकाला, उसमें आपने RLP प्रैक्टिस किया. व्हाट इज़ RLP? रीडिंग, लिसनिंग एंड प्रैक्टिस. इन रीडिंग व्हाट यू नीड टू डू, आपको उस 1 घंटे में 20 मिनट रीडिंग को देना है अपनी, 20 मिनट लिसनिंग को देना है एंड 20 मिनट प्रैक्टिस को देना है. आपने कोई भी बुक पढ़ी, कोई भी पैराग्राफ पढ़ा, कोई भी चैप्टर पढ़ा, रीडिंग करी, ठीक है. हो सकता है पहली बार में आपको समझ में नहीं आई, दूसरी बार में नहीं आई, तीसरी बार में रीडिंग समझ में नहीं आई, चौथी बार में क्या होगा, आपको धीरे धीरे समझना शुरू हो जाएगा वो चीज़. फर्स्ट इट कैन बी न्यूज़, या न्यूज़ लाइक BBC न्यूज़, CNN न्यूज़. यू कैन लर्न इट, आई मीन यू कैन listen it, in which there are a lot of English speakers speak in English and give information in English which will benefits you in a long term journey. आप सुनोगे उस चीज़ को, कोई भी न्यूज़, कोई भी पॉडकास्ट हुआ, कोई भी चैनल हुआ, कोई भी सॉन्ग्स से तो आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो. हालांकि आपको समझ नहीं आते क्योंकि आप सुनते सारे होंगे यहाँ पे, ठीक है. तो आप उसे सुन सकते हो 20 मिनट, ज़्यादा नहीं, बस 20 मिनट सुनो. आपका मन है तो पूरे पूरे दिन सुनो, तो 20 मिनट सुनो, उसको समझो उस चीज़ को. थर्ड थिंग, एज आई सेड, प्रैक्टिस. सपोज आपने कोई पॉडकास्ट सुना 20 मिनट पहले, ऐसे मतलब 60 मिनट्स में से आपने 40 मिनट्स पहले में आपने वो सुना पॉडकास्ट, तो पॉडकास्ट को आप प्रैक्टिस कर सकते हो. मतलब सुना आपने, आपको समझ तो आया होगा, चलो नहीं समझ में आया आप कुछ भी, अगर नहीं समझ में आया तो आप एक चीज़ कर सकते हो कि कुछ भी टॉपिक लेके, कोई भी टॉपिक लेके आप उस चीज़ से रिलेटेड चीज़ें सोचना शुरू करो, उसको प्रैक्टिस मतलब उसको ट्रांसलेट करना दिमाग में शुरू करो और उसको बोलना शुरू करो.
और अगर आपको कोई पॉडकास्ट समझ में आ गई, कोई भी चैनल की न्यूज़ समझ में आ गई है या कोई भी पैराग्राफ समझ में आ गया जो आपने रीडिंग में एनालाइज किया था, तो आप उसको प्रैक्टिस करो. जस्ट क्लोज द बुक एंड जस्ट थिंक, ओके व्हाट आई लर्न फ्रॉम दिस थिंग, दिस. सपोज मैंने 50 लाइनें पढ़ी, 50 में से मुझे 6 समझ में आई, ठीक है. तो उन 6 के रिगार्डिंग, मतलब उन 6 के अंदर जितने भी 60, सपोज 60 वर्ड्स आए, तो उन 60 वर्ड्स को मैं 120 वर्ड्स में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आपको वो देखना है, ठीक है. नेक्स्ट 20 मिनट्स, तो आपका दिन का 1 घंटा ऐसे निकल गया. आपने अपने 1 घंटे को 20-20 मिनट में क्लासीफाई किया और आपने उसको अच्छे से यूटिलाइज किया. तो ये टेक्निक आपको बहुत हेल्प करने वाली है. सो द नेक्स्ट थिंग दैट एज आई मेंशन, कि आप चैट जीपीटी का यूज़ करो या ग्रॉक का यूज़ करो या किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज़ करो, सो दैट आपको कॉन्वर्जेशंस में हेल्प मिले, ठीक है. देयर आर लॉट ऑफ यूट्यूब चैनल्स एंड प्लेटफॉर्म्स दैट विल दे विल टेल यू कि ऐसे ऐसे कॉन्वर्जेशंस की जा सकती है. या फिर आप किसी भी आपका घर में छोटा भाई अवेलेबल है, बड़ा भाई अवेलेबल है, कोई आपका नेटिव स्पीकर फ्रेंड है, या फिर जहाँ पर भी आपको चांस मिले इंग्लिश बोलने का, इंग्लिश सुनने का, इंग्लिश स्पीकर के साथ बात करने का, तो आप प्लीज़ जाके बात करो. प्लीज़ ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी एंड ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश. हिंदी में ना बात करके आप उससे इंग्लिश में बात करो, बिकॉज उसका कुछ बिगड़े ना बिगड़े, आपको बहुत फ़ायदा मिल रहा है वहाँ पर, ठीक है. So the next thing that you can do is vocal. Okay, vocal is must. वोकल को आप कुछ मत करो, आप दिन में 10 मिनट दे दो, सुबह दो, शाम को दो, इवनिंग में दो, आफ्टरनून में दो, नाइट में दो, रात को सोते समय कभी भी दो. बस वोकल को 10 मिनट दे दो अपने. वोकल में क्या करोगे, मतलब आपने दिन में कुछ भी किया, आपका डेली रूटीन हुआ, आपको कोई भी पास्ट इंसिडेंट हुआ, आपका फेवरेट मूवी हुआ, आपका कोई स्पीच का टॉपिक हो, डिबेट का टॉपिक हो, आपने कोई भी टॉपिक झट से लिया, आपने उसके बारे में सोचा, उसको फ्रेम किया, उसके सेंटेंसेस, और उसको फटाफट बोला. उसको एक जो सपोज 10 मिनट मैंने कहा ना, 10 मिनट दिया आपने, उस टॉपिक को 3 मिनट में खत्म कर दिया. तो नेक्स्ट के 7 मिनट्स में आपको उस टॉपिक को, और मतलब जो आपने 3 मिनट में खत्म किया है ना वो टॉपिक, तो आप उसको 2.5 मिनट में, 1 मिनट में, 1.5 मिनट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो. आप अपने फ़ोन में टाइमर सेट करो. टाइमर सेट करोगे देन यू विल गेट टू नो कि ठीक है, फिर मैंने 3 मिनट में पूरा किया ना इसको, तो आई कैन इंक्रीज माई स्पीड. लाइक मैंने 3 मिनट ना करके फ़ोन में टाइमर लगाया 2:30 का, मीन्स 2 मिनट 30 सेकेंड्स का. तो और मैं जल्दी जल्दी बोलने की प्रैक्टिस करनी है मुझे. जल्दी जल्दी का मतलब ये नहीं है कि वर्ड्स खत्म कर रहे हो, सेंटेंसेस काट रहे हो, नहीं. जल्दी जल्दी मतलब फ्लुएंसी आती है इससे. एंड सपोज कोई इंसान है, वो अपने 4 सेंटेंसेस 3 मिनट में कंप्लीट कर रहा है, राइट. सो द टाइम विल कम कि वो अपने 4 सेंटेंसेस ही 30 सेकेंड्स में, फिर लेस दैन 30 सेकेंड्स में कवर कर सकेगा. दिस इज व्हाट वी कॉल फ्लुएंसी, कि उसने जल्दी जल्दी फ्रेम किया अपने. सपोज वो ट्रांसलेट करके बोलता है, कुछ लोग बहुत होते हैं प्रो स्पीकर्स होते हैं जो ट्रांसलेट मतलब इंग्लिश में ही सोचते हैं और इंग्लिश में ही बोलते हैं, लाइक वी डू. बट कुछ लोग होते हैं कि जो उन्हें ज़रूरत पड़ती है कि वो ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में चीज़ें, एंड देन दे स्पीक इन इंग्लिश, राइट. सो द टाइम विल कम देन दैट स्पीकर हु इज ट्रांसलेटिंग इन देयर माइंड इन इंग्लिश, इन हिंदी, that person will translate it in English and will speak in English altogether. So my point is this, as I mentioned some tips here. So what you need to do, vocal, the more and more you can watch TV channels in English, not in Hindi. TV channels पता लगे कलर्स खोल के बैठ जाओ, नहीं. TV channels, news channels, and the fourth thing, reading. आपको रीडिंग मस्ट है, ओके. अभी अगर आप नए स्पीकर, आपको रीडिंग मस्ट है. और द फिफ्थ इज, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इंग्लिश सुनो, बिकॉज रीडिंग एंड लिसनिंग आर मस्ट इन स्पीकिंग. आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा सुनोगे इंग्लिश, आपको उतनी अच्छे और उतनी जल्दी ही इंग्लिश आएगी. ओके, सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो and learn from this video a lot. So please like this channel, comment this channel and subscribe. Thank you so much.